आत्मैश्वर्य निस्पृहो जायते कीर्तन करेंगे। जय श्री बागेश्वर गौरी शंकर भगवान की जय। मारा देवाधिदेव परम कृपालु परम तारणहार अनंत गुण आनंद धाम એવા પરમાત્માના શાસનને પામી આપણે સૌ ધન્ય બન્યા છીએ, જેના કારણે ગુરુ ભગવંતોની આપણને દિવ્ય અને ભવ્ય પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ। અદ્ભુત એવી અદ્વિતીય એવા મોક્ષ માર્ગની ભવ્ય પરંપરાના દિવ્ય સાધકના શાસનને પામી આગમો ધારક સેના વરખા સેવી પવિત્ર બન્યા એવા એક ઊંડા ચરિત્રવાળા મહાપુરુષ પૂજ્યપાદ જનાર્દન સેવી ગચ્છાધિપતિ સદાથી શૌર્ય પુરુષ સંત કબીર સાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા જો પરમાત્માની કૃપા જ્ઞાન એવા જ ગુણ દૌલત દુનિયામાં કોઈની બાહ્ય દૌલત તમારા દોરડાની ગચ્છાધિપતિ એ આત્મનિષ્ઠ જે વાત સમજાવી છે જે વાત ईश्वर अपना सागर भी बाहर हो गए। प्राप्तव्यम नावशिष्यते स्वभाववाक्यमपि प्राप्तव्यम नावशिष्यते। જ્યારે એક સાધુ પોતાની આત્મસાધનામાં એક દિવ્ય પદ પર અંતરના સંકલ્પ સાથે પરિણામ સાથે શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યારે એના મનની અંદર એક વાત રહે છે, સ્વભાવના ભાગ્યમપી કર્તવ્યમ નાવશિષ્યતે। મારે મારા સ્વનો ભાવ એટલે કે સદભાવ અશુદ્ધ ભાવ એને પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય મારા જીવનમાં કંઈ પામવા જેવું બચતું નથી। અને ત્યારે એ સાધક આ ભાવનાના કારણે સ્વયં નિષ્ફળી બને છે, એ સાધક બને છે। અને આવા સાધકનું કોઈ જીવન ચરિત્ર જોવું હોય તો અમે અમારી આંખે એ મહાપુરુષને નિહાળ્યા છે, એમના પડખા થયા છે। જગતવીરને નિહાળી ધન્ય બન્યા છે જેનું દર્શન માત્ર સંકટ મોચન। જે બાદ ગચ્છાધિપતિ તો અમે અમારું પરમ ભાગ્ય છે કે આટલી મોટી દેશ હોય 113 વર્ષનું આયુષ્ય, 83 વર્ષ શિક્ષા મળી આવે, વર્તમાન કાળના સર્વશ્રેષ્ઠ ગ્રંથોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જેનું દર્શન જેમને કહી શકાય અધિકજીની યાદ છે ત્યારે એમણે અમે ધન્ય છીએ કે એમની સ્તુવતા નિરાકારતા નિર્લેપતા બની ગઈ છે। हाँ सिद्धार्थ फेसबुक पे नहीं चल रहा है क्या? અમારી પ્રશ્ન મેદાનની અંદર જ્યારે અમે એમને નિહાળ્યા સંખ્યા પ્રેમ તીર્થ હજારો લોકોની ઉપસ્થિતિ હશે, એમને અમે જોઈએ એ કોચિંગ રૂમમાં હોય, એક જાત પ્રસંગમાં હોય, જ્ઞાનીમાં હોય, फेसबुक पे नहीं चल रहा है क्या? એમની નિષ્ફળતા ચાહેના ચરણોની અંદર નવે બાળક આવે અભ્યપતિ માનસ આવે બંને સત્ય એમની એક સમાન નિષ્ફળતા આ આંખોએ પોતે નિહાળી છે અને મેં ખૂબ સંજ્ઞત કરવી છે। અમારી આંખોએ એમના જીવનને ઘણી વખતે જોયું, અનેક પ્રસંગોમાં કરવાનું થયું છે। દર વખતે માત્ર આગમ 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 અને માત્ર આગમમય એમનું જીવન એ તાંબાની પ્લેટો અને ઓઢાથી પ્રમાણજે પછી હાથે મારે પોતાને ત્યાં મૂકે અને પછી એક એક પ્લેટ એનું પોતે નિરીક્ષણ કરે, એક એક અક્ષર સંશોધન કરે, આવીને શિક્ષાની સાધનની હજારો પ્લેટો
સાક્ષાત આગમ મંદિર માટે એવો શ્રીએ જે શ્રમ આપો છે સૌથી મહત્વની વાત જૈન શાસન કહે છે કે તમે પ્રચારક છો પ્રભાવક છો અને સાહેબ બોલતા આવડે ને એ બોલવાથી લોકો પામે એના કરતા તમારો પ્રભાવ તમારું જીવન બને છે એક અરબીની કહેવત છે એમાં લખ્યું છે आप कितना जोर जोर से बोलते हो लेकिन वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती आप कितना जोर जोर से बोलते हो मगर वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती क्योंकि आपका चरित्र जो है उससे अनेक गुण जोर जोर से बोलता है अगर आपका चरित्र कुछ गलत बोलता है फिर आप कितना भी जोर से बोलो सामने वाले पे बोलते हो दौलत सागर कृष्ण जी महाराजा भले ही प्रवचनकार नहीं लेकिन जो इनके निष्ठापूर्वक निरअतिचार जो उन्होंने संयम जीवन की पंचाचार की वही वजह है कि आज समग्र जैन शासन के अंदर समग्र विश्व के अंदर आज एक संगत कबीर सभी धर्म के सभी पंथों को एक साथ मिलकर उनको नवाजा कुछ भी नहीं बोलते हुए भी किसी आत्मविश्वासियों अपने भीतर जब इंसान चला जाता है और एक निराश एक शांति मैं पूर्ण हूँ मैं शांत हूँ मैं सुस्त हूँ मैं खुद हूँ मैं मुक्त हूँ ऐसा जब वाइब्रेशन ऐसी जब ऊर्जा एक ही आत्म परिस्थिति अंदर में निर्माण होती है तो बाहर की सारी दौलत जो है वो चरणों में यूं ऐसे खिल जाके गिरती है और वो हम देख सकते हैं दौलत सागर कृष्ण जी महाराजा हमें उनके जीवन के माध्यम से हमें समझाते कि ये बच्चा अगर कुछ आगे बढ़ना है कुछ पाना है तो संसार में दौड़ अंदर जा भीतर बैठ और अंदर तो मुक्त है तो पूर्ण है ऐसी अनुभूति कर पूर्यंते येन कृपणा तदुपेक्षैव पूर्णता दुनिया जो मकान गाड़ी बंगला परिवार शरीर स्वास्थ्य दुनिया पूर्ण होती है उसकी उपेक्षा करना मुझे उनकी किसी की जरूरत नहीं है मैं अपने आप में पूर्ण हूँ परमात्मा ये अपने आप की पूर्णता का महसूस करना ये जीवन में देखना हो तो दौलत सागर कृष्ण जी महाराज के चरणों में जाइए और उन्हें देखिए वो कितने पवित्र आत्मा है हमने उनको गोचरी मानने के अंदर गोचरी वापर क्यों देखा है जैन शासन की पूरी मर्यादा के साथ वापर में वक्त बोलना भी नहीं अपना जूठा किसी को देना भी नहीं कुछ ऑर्डर दे के कुछ मंगवाना नहीं जो मिला तो ले लेना चाहे वो पक्का भी हो चाहे वो कच्चा भी हो हमने उनको एक बार भाई देवेंद्र उनका संग था और जो हमने देखा उनके पात्रों में हमने मूंग तो दे दिया जब हमने मूंग लिए हमें मालूम हुआ कि मूंग थोड़े कच्चे रह गए थे हमने कहा इतनी बड़ी उम्र है ये मूंग पचेंगे नहीं हम सब मिलते हुए ये मूंग हमको दे दीजिए लेकिन एक बार कच्चे तो कच्चे कम से कम आधा घंटा हो गया और हम मनवार करते रहे उन्होंने नहीं दिया अंत में बोला पौना घंटा हो जाएगा आप समझ जाइए तो हमें वापस नहीं दिया उन्होंने वही नहीं वापरे हमने हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसे गुरुदेव हमको मिले बहुत बहुत पुण्य है हमारा और 102 दिन का महोत्सव का शुरू हो रहा है हम 102 दिन और खास तौर पे मैंने एक भावना व्यक्त की है कि चातुर्मास में तो जितना हो सकेगा हम इस महोत्सव का लाभ उठाएंगे लेकिन चातुर्मास के बाद बहुत ये गुरुदेव के उपलक्ष्य में इनका ये जीवन जो ऐश्वर्य उनके उपलक्ष्य में गुणानुराग करने के लिए गुणानुवाद करने के लिए और उनके जैसे गुण हमें भी आए इस भावना के साथ
चातुर्मास में तो संखेश्वरपुरम तीर्थ की प्रतिष्ठा के निमित्त का लाभ उठाएंगे, लेकिन चातुर्मास के बाद संखेश्वर महातीर्थ है, वहां से करीब 40 दिन का प्रयाण 20 नवंबर को यानी कि काकपति दर्शन को होगा और हजारों लोगों के साथ यह संघ गांव गांव आराधना साधना भक्ति उपासना आदि के जीवन चरित्र सुनानुवाद के साथ संकेतपुरम क्षेत्र में यह संघ आएगा। वहां से तकरीबन मास्टर बदी के कम को और फिर यहाँ अंजन शलाका प्रतिष्ठा और भी कई महोत्सव दीक्षा हो पदवी हो और भी कई महोत्सव श्रृंखला में खड़े ऐसे अद्भुत जीवन चरित्र में सारा कार्यक्रम बड़ी आसान से यहाँ मनाने का हमारा भाव है और उसके बाद फिर गिरिराज की यात्रा को आगे बढ़ेंगे। गिरिराज हम पहुंचेंगे और भी कई महोत्सव मास्टर बदी पंचमी को यहाँ प्रतिष्ठा करके मास्टर सप्तमी को 16 दिसंबर को गिरिराज पर फिर से होने जा रहा है एक अनुपम दिव्य और भव्य मनाने का हमारा गिरिराज को विराजमान 11,000 परमात्मा 11,000 उपासिका और हजारों पगथिये ये सारे परमात्मा की अष्ट प्रकार महापूजा और दादा की दिव्य सजा का अद्भुत एक अवसर फिर से मनाने जा रहे हैं। सच्चा देखा होगा सजा का एक महोत्सव जो हुआ कृपा से ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा हो पाया है। अगले साल भी हमारी भावना है ऐसा 102 दिन का जो महोत्सव है जो थोड़ा सा और लंबा करके इसी महोत्सव को एक अंग बना करके ये प्रसंग होने जा रहा है। महाप्रसंग माल निर्गिर उत्सव सजा का भूतपूर्व आयोजन ये सारा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और दिल में यही तमन्ना है कि परमात्मा को नहीं मिले, लेकिन परमात्मा का जो जीवन अंत है इस कलिकाल में हमें प्राप्त हुआ है और उसका नाम है दौलत सागर। होने जा रहा है भक्त के घर के ऊपर गुरु और भगवान दोनों पहुंचे। दरवाजा खोलते ही भक्त ने देखा मेरे घर पर भगवान भी आए हैं गुरु भी आए हैं। भक्त ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया। भगवान ने कहा मेरे गुरु के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। भक्त गया गुरु के चरणों का स्पर्श किया। गुरु ने कहा भगवान को लेकर आया उन्हें समझ उनके चरणों पर और भगवान से फिर गया भगवान के चरणों में पड़ा। भगवान ने कहा भैया मैं भगवान हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू खाए बलिहारी गुरुदेव की गोविंद जी बताए मैं भगवान हूँ ऐसा समझाया किसने? गुरु ने। क्या चरणों में गुरु के भक्त गया गुरु के पास। गुरु ने कहा मैंने बताया बराबर है इसको बड़ा किया तेरा सारा संसार है ना तो समृद्ध किया। तेरी जो आम प्राण है तेरी इज्जत है ऐश्वर्य समृद्धि जो भी है वो किसकी वजह से? भगवान की वजह से है। जा उनके चरणों में गिर। फिर भक्त गया भगवान के चरणों में गिरा। भगवान ने कहा भैया गुरु की बात मना नहीं कर मैं हूँ मेरी कृपा से सब हो रहा है बात बराबर है। लेकिन एक बात समझ ले मेरा कार्य क्या है? जो अच्छा करता है उसे अच्छा फल देते हैं, जो बुरा करता है उसको बुरा फल देता हूँ। लेकिन गुरु वो ताकत है गुरु वो शक्ति है उनके चरणों में अगर तो व्यभिचारी दुराचारी अनाचारी भ्रष्टाचारी बदमाश डाकू गुंडा कोई भी व्यक्ति गुरु के चरणों में जाके गिरता है तो गुरु अपने प्रभाव अपनी ऊर्जा कुंड के आगोश में लेता है अपने बाहों में लेता है अपनी ऊर्जा अर्पित करता है और इंसान का परिवर्तन कर देता है। इंसान को अच्छा बनाने का काम गुरु करता है। अच्छे बने हुए को अच्छी समझ देना ये काम मेरा है। लेकिन गुरु ही एक ऐसी ताकत है जो हर इंसान को भगवान बनाता है। तो इंसान से भगवान तक यात्रा कराता है वो गुरु होता है। इसलिए गुरु की भक्ति कर और मुझे कहना है सागर समुदाय मात्र नहीं समग्र जिन शासन इस भाव से प्रभावित है अभाव से भावित है कि आज ऐसे निष्ठुरी
ऐसे अभ्यंतर दौलत के स्वामी। नहीं तो आप सोचिए, थोड़ा सा आप सोचिए, आज मेरी 52 साल की उम्र है, हमारी जो स्वस्थता है 102 साल, 102 साल पर उनकी स्वस्थता हम महसूस करते हैं हमसे भी ज्यादा अच्छी। न कोई ब्लड प्रेशर, न कोई डायबिटीज, न कोई ऐसा रोग, उनको कोई दवा कभी लेना नहीं। आप बिना टेके से बैठना, अपना होगा खुद भागना, खुद आज चल सकते हैं, बिना चश्मे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आज भी आपसे बातचीत करके अपना पूरा भूतकाल भविष्य ये सब दिखा सकते हैं। इतनी बड़ी शक्ति कैसे और इतना पुण्य प्रभाव साम्राज्य निर्माण कहाँ से हुआ? ये आज एक गंगा की तरह पवित्र होकर बन के पूरे विश्व में गंगा की गंगोत्री क्या है? गंगा की गंगोत्री है उनका निर्मल निराकंठ अभ्यंतर दौलत, आगमों की सेवा, निर्विचार संयम जीवन की पालना। हमें समझना चाहिए कि गुरुदेव उनके जीवन चरित्र से, उनके महत्व और मात्र प्रभाव से हमें समझाने जा रहे हैं कि पुण्यवान आपको भी सकल विश्व के अंदर अद्वितीय मोक्ष मार्ग के पंच महाव्रत की पालना है। वह परोपकार में हमारे जीवन की यात्रा है। परमात्मा को सही मानना, सही समझना, सही आराधना, सही साधना का एक अद्भुत हमारे पास अवसर है। बड़े पंचम काल है, लेकिन ऐसे गुरुदेव हमें समझाते हैं जब पंचम काल में नहीं, हम काल के हमारे को सुषमा की दुष्मा और पुण्य निदान भी ऐसे गुरु में प्राप्त हुए, वो समझा रहे आप अपना चरित्र सुधारिए, अपना चरित्र अच्छा कीजिए और अंदर की जो आपके आशयों की शुद्धि करिए। बस सकल विश्व के साथ एक मैत्री प्रेम का व्यवहार बनाइए और सर्वत्र हम कह सकते हैं दौलत नगर महाराज यानी की 50 दुनिया में कोई उनका शत्रु कभी नहीं मिलेगा। तो हमारा भी हो सकता है जब हमारे अंदर के दुर्गुण को नाश करेंगे, हमारे अंदर की अनेक प्रकार की नेगेटिविटी, अनेक प्रकार की कुशंकाएं, शंकाएं, अंधश्रद्धाएं हम नाश करेंगे, हमारा जीवन भी अच्छा बन सकता है। गुणानुवाद का मतलब इतना नहीं है कि हम बोले आप सुने, मतलब है हमारे मुंह से सबसे नजदीक हमारे कान है और हम बोले हम सुने। और गुणानुवाद का मतलब है उनके जीवन के सद्गुणों को, उनकी निष्ठता को, निराकंठता को, निष्कपट जीवन यात्रा को हम भी अपनाए। और अगर हम निष्कपट बन जाते सकल विश्व के कल्याण करने का हमारे भीतर भव्य ताकत है। समय का ज्यादा उपयोग न करते हुए और भी कई महापुरुष, हमारे समुदाय के महापुरुष, दिग्गज प्रवक्ता जो है उनको भी हमें सुनना है। उन सबके चरणों में नमस्कार करते हुए हम भावना व्यक्त करते हैं, पधारिए और आपकी वाणी की जादू से, आपकी मधुर भाषण शैली से आप और सभी लोगों को इन पुण्य यात्रा के अंदर आगे बढ़ाइए। हे परमात्मा से ज्यादा उपयोग न करते हुए और भी कई हमने हमारे समुदाय के अभी पन्यास प्रवर अनुयोगाचार्य सुनना है। उन सबके चरणों में लब्धि चंद्र सागर जी महाराज साहेब ने संघ स्थविर जिन आगम सेवी गच्छाधिपति आचार्य देव श्री दौलत सागर श्री महाराजा के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला। आज 102वें जन्म पन्यास प्रवर अनुयोगाचार्य दिवस का महोत्सव कल से प्रारंभ होने वाला और इस जन्म महोत्सव को हमको 102 दिन तक बनाने का भाव था, जिसको हम संघ स्थविर वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। और ये 102 दिवसीय चलने वाला महोत्सव 160 दिनों तक पहुंच गया। आज 160 दिन तक पहुंच गया ये महोत्सव। 102वां जन्म दिवस महोत्सव 1200 से अधिक श्री संघों के अंदर बनने जा रहा है। महोत्सव को हमको लगता है आपको बनाने का एक समुदाय की आज भिन्न भिन्न आचार्य भगवान एक साथ एक मंच पर 60 दिनों तक पहुंच गया। आज उपस्थित हुए किनके पुण्य से ये संभव हो गया। तो ये पुण्य का क्रेडिट अगर किसी के पास जाता है तो वो क्रेडिट जाती है गच्छनायम संघ स्थविर एक गुरुदेव श्री को। अगर वो ना होते तो शायद ये समुदाय के भी भिन्न 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 मोती अलग अलग जगह बिखरे हुए थे, जिनको आज संघ स्थविर श्री ने
सभी मोतियों को एक माला के रूप में गुथो करके रखा है और उसी का परिणाम है कि आज पूरा का पूरा समुदाय मिलकर करके 950 से अधिक साधु साध्वी जी भगवान इस महोत्सव के लिए उमंग के अंदर समग्र चीन शासन के श्री संघ इस महोत्सव के लिए जोश के अंदर है। तो समग्र चैन श्वेतांबर श्री संघ के अंदर विराजमान सभी श्रमण श्रमणी भगवान इस महोत्सव के लिए उत्साह में है। ऐसे गुरुदेव श्री का हम 102वां जन्म दिवस के साथ साथ ये संघ स्थविर महा महोत्सव बनाने जा रहे हैं और इसी श्रेणी में अब हमको सुनना है आचार्य भगवान वाणी के जादूगर जितरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को अब हम श्रवण करेंगे। चित्ररत्न सागर से वो ऑनलाइन ही नहीं है। डेल का तो मैं ही हूँ ना और विश्वरत्न सागर जी को ले साहब जी अब मैंने कहा और यहाँ पे इनवाइट तो साहब जी आप ज्वाइन करिए ना। जी 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 हाँ अच्छा ठीक है। साहब जी आप आ जाइए जी जल्दी लीजिए क्योंकि आपका वेट है। आइए अच्छा हेलो हाँ मुक्ति सागर जी को दे रहा हूँ काका तो मुझे हाँ
अपना ही है ना इसमें ये बाकी सब बाकी ये लोग तुमने आज की नहीं बनाई ये इतनी की होती साहब जी आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ किस आवाज है? ये लिंक उसी नहीं थी, ये निकाली अभी हमने। ठीक है ठीक है। के बदल के पास में प्रार्थना मंगल शुभेच्छा। यहाँ पे ले लो, ऑफिस है। आप लाइव पे हैं साहब जी? हाँ अब आया है, चलो आ गए। आ रही अब आ रही। हाँ जी। असा अनमोल असा संदेश सरांनी दिला त्याबद्दल सरांनी खूप खूप आभार. सर तुम्ही आम्हाला अनमोल असे मार्गदर्शन दिले त्याबद्दल धन्यवाद. हमारा सब्जी आपका चालू है, आप प्रार्थना स्टार्ट कीजिए। मुक्ति सागर जी महाराज साहब जी आप लाइव पे हैं। हाँ अनम्यूट कर दिया, अब क्या स्पॉट लाइट कर दिया। ओके उनका मेरी साइड से तो उनको कॉल करता हूँ। हेलो मेरी तरफ से खुला है, उनका कॉल करके खुलवा रहा हूँ। हाँ मेरी साइड से खुला है, मैं कॉल कर रहा हूँ। मेरे यहाँ से चालू वो उनका म्यूट करता हूँ मैं। शायद जी आपका माइक बंद है, शायद जी आपका माइक ऑन कीजिए। किसी कारणवश आचार्य भगवान जितरत्न सागर श्री महाराज साहब अभी हमसे संपर्क में नहीं है। हम सुनते हैं आप मालव मार्तंड आचार्य भगवान मुक्ति सागर सुश्वर जी महाराज साहब अब प्रकाशेंगे और संघस्थविल जिन आगम सेवी गच्छनायक आचार्य भगवान दौलत सागर श्री महाराजा का गुण कीर्तन करेंगे आचार्य भगवान मुक्ति सागर सुश्वर जी महाशय। शायद जी आपका माइक बंद है।
वीडियो बंद कर। साहेब आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके यहाँ से माइक बंद करा हुआ है। ऑडियो खोलो, ऑडियो बंद है। ऑडियो नहीं खुला है, ऑडियो बंद आ रहा है। ऑडियो नहीं खुल रहा है यार, ऐसे करने। ऑडियो नहीं खुला साहब। माइक 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 का निशान आ रहा होगा, उस पर टच करोगे तो खुलेगा। माइक बंद है आपका। माइक चालू करो, माइक बंद है वहां से। अच्छा अब हुआ, अब आ रही है आवाज? हाँ आ गई शायद। अरे ठीक है, हाँ हाँ चलो अब शुरू करें। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, सागर समुदाय के लिए यह गौरव का विषय है कि हमारे गच्छाधिपति के 102वें वर्ष का जो प्रवेश होने जा रहा है उसका आयोजन चल रहा है। वैसे पिछले 2 वर्ष से शंखनाद ये फुकाया हुआ है। आज हम सभी इसका खूब ही गर्व ले सकते हैं कि हमको ऐसे गुरु का सानिध्य मिला है, ऐसे गुरु का साया मिला है कि जिनका पूरे जैन जगत में जिनके नाम का डंका बज रहा है। कल से यानी कि कल 11 जून और कल से बराबर 102 दिन बाद गुरुदेव 101 वर्ष पूरे करेंगे और 102वें वर्ष में उनका प्रवेश होगा। और ये 102 दिन पूरे समुदाय के लिए अलग अलग जगह पर आनंद का, खुशियों का एक मेला लग रहा है। सब अपने अपने स्तर पर अपने अपने हिसाब से पूजन, पूजा, अनुष्ठान, जाप, हवन वगैरह विविध कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये गच्छाधिपति का प्रचंड पुण्य काम कर रहा है उसमें। वैसे देखा जाता है कि जिसका शिष्य वर्ग बहुत हो, जिसका भक्त वर्ग बहुत हो, उसका चारों तरफ नाम लहराता है। गच्छाधिपति के बारे में मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। इनके पास कौन सा बल है, ये आज मुझे आपको बताना है। न तो उनके पास शिष्यों का बल, न उनके पास भक्तों का बल, फिर उनके पास साधना का बल। मेरी दीक्षा को 44 वर्ष पूर्ण हो गए, 45वां चल रहा है। 1978 संवत 2034 में मेरी दीक्षा हुई थी यहीं मालवे में, उज्जैन में, और तुरंत गुरुदेव के साथ हम गुजरात पहुंचे थे 2 महीने 2.5 महीने के अंदर ही। और गुरुदेव का तभी से संपर्क और सानिध्य में पाता आया हूं और मैं उनके निकट से बहुत कुछ देख रहा हूं। जब आज से 44 साल पहले अहमदाबाद में पहली बार गुरुदेव के पास हम पहुंचे, गच्छाधिपति भी थे आपके गुरुदेव पूज्य आचार्य देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज, और हम सब नए नए साधु गुरुदेव के साथ, हमारे गुरुदेव के साथ हम पहुंचे। प्रतिक्रमण करने का अवसर आया, मुझे आदेश दिया। मैंने प्रतिक्रमण के बाद पूछा था कि साहब जी मैंने प्रतिक्रमण कैसा पढ़ाया? जब बाल नए थे हम तो बिल्कुल, मैंने कैसा पढ़ाया? बहुत अच्छा, लेकिन जरा स्पीड से बोला करो, जरा जल्दी, धीमे धीमे बहुत बोलते हो। मतलब इतनी टकोर भी की थी। और उसके बाद तो कोई 10-15 मरतबा गुरुदेव के साथ रहने का अवसर आया, मिलने का अवसर आया है, और नई नई अलग ये उनके मुझे अनुभव हुए हैं। मैं आज आप सबके सामने बस ऐसे ही कुछ अनुभव शेयर करूंगा। एक बार में लगभग ये भी 28 वर्ष पुरानी बात है, संवत 2050 और 1994 की बात, पुणे में हम गए। कातरस के अंदर गुरुदेव विराजमान थे और मैं वहां पहुंचा। मेरे शिष्य अचल महाराज और हम दोनों दोपहर को पढ़िलेन का अवसर है, पढ़िलेन करने के लिए, तो नहीं रहने दो, बड़ी प्यार की भाषा बोला, ऐसा नहीं कि एकदम वो, लेकिन उनके नहीं भाई वो जाते कर इसके, क्योंकि साहब कुछ तो लाभ दो। तो फिर एक कपड़ा, एक रुमाल दे दिया, माथा बंधन या हाथ का रुमाल, चलो भाई तुम्हारी भावना से आटलो करो। मैंने बहुत आग्रह किया कि मारा साहब आपका होगा तो दो होगा, लेने का नहीं, वो जाते बांधिस।
बैठ गए। मतलब शुरू से मैंने देखा है कि आत्मनिर्भर, गजब के आत्मनिर्भर। आज गुरुदेव सकल जैन शासन के अंदर सर्वाधिक वही वाले, सर्वाधिक दीक्षा पर्याय वाले, और जिन्होंने अपने जीवन में ज्ञान की साधना का यज्ञ लगाया, इतना, लेकिन फिर भी पूरे निरभिमानी, पूरे निष्प्रय। और ये जो देख रहा हूं अपनी क्रिया में चुस्तता, उस वक्त देखा मैंने कहा आपके लिए हम बैठे थे दोपहर को, दूसरे दिन रहे तो उनके साथ थोड़ा सा आपका नहीं तमार काढ़ी लो। और फिर भी मैंने बहुत आग्रह किया तो मेरी भावना भी रख दी, एक छोटा रुमाल दे दिया मुझे, नहीं या शायद मोमबत्ती दी बस, और बाकी खुद बैठ गए काम निकालने। तो इतने मैंने देखा कि ऐसा तो मैंने गुरुदेव को वास्तव में खूब ही अपना कार्य स्वयं करें। आज जो मैं देख रहा हूं, जिनसे आज सागर समुदाय की चारों तरफ एक अलग ही पहचान बनती जा रही है, ये गुरुदेव का पुण्य काम कर रहा है। और ये पुण्य कैसे कि इनकी साधना, कैसी साधना है, काम तो करना ही है, काम खुद करना है, क्रिया में चुस्तता रखना है, सिवाय इसके यहाँ तो स्वाध्याय या हाथ में माला। इतने साल के इस संयम जीवन के अंदर जो मैंने जाना है, माना है, मुझे एक वस्तु लगी, शास्त्र वचन मेरे सामने आए कि शुद्ध से शुद्ध यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो विजातियों को, विजातीय का संपर्क देखने से भी टालो और सजातीय का स्पर्श से टालो। और ये दोनों मैंने गुरुदेव में देखे। बहने या साध्वी जी महाराज आए, वंदन किए, कुछ काम का सुख था, मस्तक मुंह नीचा, हाँ देव हो बस आराधना करो, शू करो, बस ये से बात है, देखना भी नहीं, सामने देखना ही नहीं विजातीय की। और स्पर्श से सजातीय का, कोई श्रावक, कोई साधु। मैं खुद गया वहां, जब 2 दिन कात्रज में रहा, उसके पहले भी संकेश्वरागम मंदिर की प्रतिष्ठा पर भी अवसर आया, कई बार मिले हैं। मैं रात को गया सेवा करने के लिए, नहीं ना भाई ना, वो नहीं कराओ तुम। मतलब ये था कि बस सजातीय का स्पर्श भी नहीं, विजातीय को देखना नहीं, सजातीय का स्पर्श नहीं, दूर से बात करो। और यही साधना गुरुदेव को सिद्धि की ओर ले जा रही है, गुरुदेव को सिद्धि की ओर ले जा रही है। और आज उस प्रचंड पुण्य के आप मालिक बने। मुझे इस पुण्य के बारे में कुछ 2-4 बातें करना, अलग अलग प्रकार के पुण्य, कैसा पुण्य होता है, कुछ 2-4 उदाहरण में मेरे इसके अंदर आ रहे हैं जेहन में। मेरी दीक्षा के भी 5-6 वर्ष पूर्व की बात है, आज से 50 साल पहले। एक दिन अखबार आया, मैं अखबार देखे थे मैंने, फिल्मी दुनिया के अंदर राजेश खन्ना का नाम चला था, सुपरस्टार बना। अब राजेश खन्ना का सुपरस्टार, तो कुछ प्रसंग अखबारों के अंदर पड़े थे कि राजेश खन्ना ने जब शादी की तो कितनी लड़कियों ने जहर खा लिया, सल्फास की गोलियां खा ली, सुसाइड कर लिया। राजेश खन्ना जब किसी समारोह में गए तो कितनी लड़कियां आकर के उनकी सफेद कार को चुम्मियां कर रही है, और अपने होठों के लिपस्टिक लगा करके पूरी कार ही, व्हाइट कलर की कार जो है उसको पिंक कलर की करती। इतनी लड़कियां उसकी इनकी कार को चुम्मी कर रही है। ये क्या था? ये पुण्य। लेकिन ये पुण्य कैसा? अरे ये तो पापानुबंधी पुण्य। जो आदमी शराब, शबाब और कबाब में खोया हो, उसका पुण्य कैसा है? उसका तो पापानुबंधी पुण्य। लेकिन वो पापानुबंधी पुण्य के शिखर पर पहुंचा हुआ था उस वक्त। अब ऐसे दूसरे पुण्य की बात देखता हूं मैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में मैंने सुना। उसके पहले महात्मा गांधी की बात करूं। गांधी जी विदेश गए, फॉरेन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज परिषद। अब गोलमेज परिषद से बाहर निकलते हैं गांधी जी, तो वहां के बड़े बड़े कितने धनपति आकर के उनके सामने विनंतियां करते हैं, और उनके सामने, महात्मा जी मुझे चांस दो, मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मेरी गाड़ी में बैठिए। ये क्या था? ये गांधी जी का पुण्य। इसको हम पापानुबंधी नहीं कहेंगे, लेकिन अभी ये पुण्यानुबंधी में भी नहीं आएगा। वो राजनेता थे। राजेश खन्ना एक फिल्म स्टार था, महात्मा गांधी एक राजनेता थे। स्वामी विवेकानंद का देखिए,
स्वामी विवेकानंद अमेरिका में, ये भी आज से लगभग 125 साल से अधिक हो चुका है, प्रसंग बना हुआ है। सैन फ्रांसिस्को में सर्वधर्म परिषद हुआ, सिर्फ 2 वर्ड बोलते हैं, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और 5 मिनट तक तालियां बजती रही। गजब का पुण्य। मगर मैं इसको भी पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं कह सकता, मगर पापानुबंधी भले ही नहीं होगा, पुण्यानुबंधी भी नहीं। और पुण्य था, जबरदस्त पुण्य था उनका भी, कि आज अमेरिका के वो गोरे लोग भी उनके दीवाने हो गए उस वक्त। अब इन सब के बाद हमारे गुरुदेव को देखिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बात कही थी कि उनका कोई, उनके शिष्य वर्ग भी, लेकिन उनके गुरु भाई उनके शिष्य से ज्यादा उनकी सेवा करते। आज तो पूरा समुदाय उनके साथ है, और समुदाय ही नहीं, अन्य समुदाय के भी सब उनको उसी प्रकार से उस मान की, सम्मान की दृष्टि से देख रहे। ये उनकी साधना के तो जबरदस्त पुण्य उनका, कि इतना आज गुरुदेव को कितने ही शिष्य हों और भक्त हों जिनके, उनको भी उनकी आज्ञा की अवज्ञा करने की उनकी ताकत नहीं, मानना ही पड़े, शिरोमान्य उनको करना ही पड़े। ये उनका पुण्य है इन गुरुदेव का। मैं गजब, मैं तो दाद देता हूं कि गुरुदेव का कैसा पुण्य है। और ये पुण्य है उनकी साधना की, गजब की साधना। जब देखो स्वाध्याय, जब देखो जाप, जब देखो अपनी संयम जीवन के अंदर मस्ती, चेहरे पर जब देखो मुस्कुराहट, कोई मायूसी नहीं। मैंने 10 से 15 बार मिलने का हुआ होगा, 12-15 बार, और जब भी देखा है, माना है, जाना है, पहचाना है गुरुदेव को खूब दिल से, आनंद से, और उनके प्रति का एक अंतर का बहुमान जगा है। और उसके साथ अपने आप को भी गौरवान्वित समझता हूं कि ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला है। इन गुरुदेव के बारे में इतना ही कहूं कि बरसों पहले, आज से लगभग 50 साल पहले, 45-46 साल पहले, एक कांग्रेस के नेता हुए देवकांत बरुआ, और देवकांत बरुआ ने एक नारा दिया था, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। मुझे याद आई बात अभी कि वो हमारे गुरुदेव के लिए आज सर जी आपका माइक फिर से बंद हो गया है। महाराज से बंद हो गया है, कैसे करेंगे? हेलो हेलो, आज तो सागर समुदाय की पहचान आज दौलत सागर सूर्य जी महाराज उनके साथ, और जब जब मिलता हूँ, जब जब देखता हूँ, अंतर में एक आनंद होता है। ऐसी उनकी साधना, स्वाध्याय में मस्त रहना, आगमों का संपादन करते रहना, निष्परिग्रही रहना, कोई भी वस्तु, कोई संग्रह नहीं। मैंने उनके साथ में विहार भी किया है गुरुदेव के साथ, मेरे भगवती के जोग करवाए। हर्ष सागर जी महाराज मलाड़ में चौमासा, और वहां से उन्होंने कात्रज का संघ निकाला। गुरुदेव पूना में हम थे, तो पूना में उनके साथ मलाड़ बंबई के लिए गए। विहार के अंदर विधा कुछ नहीं, कोई साधन, कोई सामान लेना नहीं, उनकी व्हील चेयर के अंदर ही एक उपदी की या जरूरी सामान की पोटली साथ में, बाकी हम चले से। मतलब इतने निष्प्रोही रहना, और भक्तों से, वास्तव में भक्तों से भी दूर। आज हम लोगों को सबको, जैसा गीता में कहा ना कि वित्तेषणा और पुत्तेषणा, इससे भी ज्यादा संतों को पतन के मार्ग पे ले जाती है। गृहस्थों को तो वित्तेषणा और पुत्तेषणा, लेकिन संतों को तो के लोकेषणा। हमारे भक्त गुरुदेव भक्तों से भी दूर है, मतलब लोकेषणा इनके अंदर नहीं। ऐसा नहीं कि इनको मेरे भक्त बनाओ, भक्तों की भीड़ लगाओ, ये सब भक्त, ये देख करके तो मुझे वास्तव में कि जिन संत को, जिन गुरु भगवंत को लोकेषणा भी नहीं, जरा भी, पुत्तेषणा ने वित्तेषणा ग्रस्तों में होती है, ऐसी संतों को पतन की ओर ले जाने वाली ये लोकेषणा है। और लोकेषणा से गुरुदेव बिल्कुल विरल है, मुक्त है, न्यारे हैं। और ये लोकेषणा से न्यारे हैं, इसलिए ही अहोभाव इनके लिए जगता है कि वाकई ऐसे गुरुदेव। और आज स्थिति यह है कि सकल
सागर समुदाय ही नहीं, अन्य समुदाय भी उनके लिए नतमस्तक है, उनकी साधना के लिए नतमस्तक है, उनकी जीवन के लिए नतमस्तक है, अंतर से उनको नमन करने का मन होता है। और उसके साथ इस सागर समुदाय को ऐसे गुरुदेव का सानिध्य मिला है, साया मिला है, शिर छत्र गुरु ऐसे गुरुदेव का मिला है, तो सभी संत गौरवान्वित है। ऐसे गुरुदेव, उनके तो जितने गुणगान करें उतने कम है। उनका जीवन ही अद्भुत है। उनके जीवन के अंदर मैंने कहा कई बार, मतलब कोई काम किसी को करने नहीं देना, खुद का काम खुद करे। ठंडिल के लिए भी जब भी देखा बस बाहर जाना। 80 में लगभग 10-12 साल पहले भी मेरा मिलना हुआ है, 12-15 साल पहले। जब देखा तो ठंडिल के लिए भी कटोरे का उपयोग करो, नहीं बाड़े में भी नहीं, लेट बात तो संडास वगैरह तो नहीं, लेकिन बाड़ा भी नहीं, कटोरे का उपयोग करो बाहर परखने के लिए। इतनी शुद्धता, इतनी शुद्धता, खान पान में इतनी, वो आचार विचार में इतनी, आहार शुद्धि भी इतनी जबरदस्त। कोई भी वस्तु है, क्या थी लायवा छो, केवी रीतनो छे, यहाँ छे, सब पूछना। इतनी शुद्धि, इतनी बारीकी, गजब गजब का। इनके बारे में अपने को कुछ, मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकता हूँ। गुरुदेव वाकई इनके लिए जो लगे हैं कि पवित्रता के सागर, ज्ञान के सागर है, पवित्रता के सागर है, स्वाध्याय प्रेमी है। संघ स्थविर का जो विरोध मिला है वाकई कोई सामान्य नहीं है, और वो योग्य है और देने जैसे। मैं तो कह चुका हूं पहले भी ये बात कि राजकीय क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार है, पूरे दुनिया के अंदर सर्वोच्च सम्मान, ऐसा ये जैन जगत का सर्वोच्च सम्मान संघ स्थविर का है। और ये संघ स्थविर का सर्वोच्च सम्मान आपको हासिल हुआ है, और आप इसके पूरे पूरे अधिकारी, पूरे पूरे योग्य है। साहब जी माइक फिर से बंद। साहब जी आपका माइक बंद हो गया है। माइक क्यों बंद कर? साहब जी आपका माइक बंद हो चुका है। माइक बंद है। संघ महोत्सव तो कल से प्रारंभ होगा, लेकिन आज के उसी तारतम्य में हम सब इकट्ठे हुए गुण कीर्तन करने के लिए। अब समय आया है गुण कीर्तन के साथ गुरुदेव के लिए 102 दिन तक इस महा महोत्सव को करने का। और ये गुरुदेव इस चातुर्मास के बाद इन्हीं के सानिध्य में उज्जैन अभ्युदयपुरम के अंदर जो निर्मित हुआ है गुरुकुल, और उस गुरुकुल में कल्याण मंदिर, चिन्ह प्रासाद, नवग्रह, 45 जिनालय महाप्रासाद, महातीर्थ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपके सानिध्य में। और एक मुझे भाव इसीलिए जगे है कि गुरुदेव की निश्रा में पूरे जैन जगत के सभी आचार्य भगवान पधारे, सभी गच्छ के और सभी समुदाय के, और मैं वही तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी एक मेरा ख्वाब है, मेरा सपना है, मेरी भावना है कि गुरुदेव के सानिध्य में सब आचार्य भगवान, सभी आचार्य भगवान पधारे, और एक इनके जीवन के, इनके हस्त से इतना विराट आयोजन हो। आपको भी सबको इसमें जुड़ना है, सहयोग देना है। और वैसे बहुत कुछ बातें मुझे करना, लेकिन समय की भी मर्यादा है। मुझे 20 मिनट का समय दिया गया है, मैंने पूछा था तो समय 20 मिनट का, अब मुझे उस समय के अंदर ही रह करके बात मेरी पूरी करना है। तो उसके साथ एक बात और याद आ गई कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 6000 गीत रचे, और रविंद्रनाथ टैगोर जब अंतिम समय पर थे, जीवन के अंतिम पड़ाव पर, और तब किसी ने उनसे कहा आपने तो गजब कर दिया, आपने 6000 गीत रचे। तब रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अरे भाई 6000 गीत, ये गीत कहाँ रचे? ये तो अभी समझो कि वो तंबूरे के तार सही किए हैं, तबले की ठोक पीट की है। म्यूजिशियन उनके वाद्य यंत्रों को जिस प्रकार ठीक ठाक करता है, अभी तो वही किया है। अभी तो गीत तो अब कहना है, अभी बाकी है, और जाने की घड़ी आ गई। मैं भी इतनी देर से जो कुछ गुरुदेव के बारे में कीर्तन कर रहा था, मेरी अल्प बुद्धि से, मेरे अनुभव से, और मैंने जो कुछ जाना माना था उनके साथ रह करके, उस हिसाब से मैंने कुछ बातें मेरे चिंतन में आई, मैंने कही। लेकिन मुझे अब ये बात कहना है
कि अभी ये जितना मैंने कहा ये तो बस वही हुआ है जैसा रविन्द्रनाथ जी बोले थे कि ये तो तंबूरे के तार ठीक किए, गीत अभी गाए ही का है, वो तो सब बाकी रह गए और अब जाने की घड़ी आ गई। मुझे भी यही कहना है कि अब मेरी भी जाने की घड़ी यहाँ से आ गई, टाइम पूरा हो रहा है। कि अभी तक जो कुछ बोला हूँ बताया हूँ इनके बारे में, जो कुछ गुण कीर्तन मैंने किए वो तो यूं समझो कि तंबूरे के तार या वीणा के तार ठीक किए थे, या वो तबले की ठोक भी ठीक की थी बस, और समय हो गया है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है और मैं आनंदित हूँ, गौरवान्वित हूँ। गुरुदेव का ये जो महोत्सव प्रारंभ हो रहा है और इसके जो भी आयोजक पूज्य हर्ष सागर जी महाराज तो है ही खूब खूब धन्यवाद के पात्र। उनका भी प्रचंड पुण्य है कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, सफलता मिलती जा रही है, मेहनत भी कर रहे हैं, शासन की सेवा अपनी अस्वस्थता के अंदर भी शासन सेवा के लिए तत्पर है। और इतना बड़ा 2 साल से ये आयोजन चल रहा है और इस वजह से गुरुदेव का तो पुण्य जबरदस्त है, पुण्य गुरुदेव का है और पुरुषार्थ इनके पीछे इनके गुरु भ्राता हर्ष सागर जी महाराज का, और उन्होंने ये बीड़ा उठाया। और आज पूरे तपागत ही नहीं, खत्तरगत ही नहीं, अंचलगत ही नहीं, लेकिन पूरे जैन जगत के अंदर स्थानक हो, तेरा पंथ हो कि दिगंबर हो, गुरुदेव का नाम ले लाया, सागर समुदाय का नाम रोशन किया है। बस हम सब सागर समुदाय के सभी आचार्य भगवान, सभी गुरु भगवान, सभी मुनि भगवान, सभी साध्वी जी महाराज भी अब इसमें जुटे। हमारे गुरुदेव का ये एक आयोजन और गुरु भक्ति दर्शाने का, और सभी श्रावक श्राविका गण भी अपनी निष्ठा, अपनी कर्तव्य भावना गुरुदेव के प्रति के समर्पित करें। 102 दिन का ये जो महोत्सव कल से प्रारंभ हो रहा है, बस इसे बहुत अच्छे से उजवे मनाए, सभी को जोड़े। और मैं सभी अभ्युदयपुरम की आने वाले साल में इस चातुर्मास के बाद प्रतिष्ठा महोत्सव में गुरुदेव पधारे, और एक ये भी सब कामना करे कि गुरुदेव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खूब शासन की प्रभावना करे, खूब शासन की प्रभावना करे। इन्हीं के साथ मेरा समय हो चुका है, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। साहब जी आपका माइक। अक्षत साहब जी आपका माइक। हमें आचार्य भगवान मालव मार्तंड आचार्य भगवान मुक्ति सागर सुश्वजी महाराज साहेब ने संघ स्थविर गच्छनाय दौलत सागर सूरी महाराज आके जीवन का गुण कीर्तन किया, उसी के अंदर एक घटना याद आ रही है। जब संघ स्थविर पद से गच्छनाय को सकल समुदाय मिलकर के वो पद अर्पण कर रहे थे, उसी दिन प्रातः सागर महाराज साहब जो कि सतत गच्छाधिपति श्री की सेवा के अंदर है, उन्होंने सुबह सुबह बोला, साहेब आज सकल जैन श्री संघ मिलकर करके आपको संघ स्थविर पद पर आरूढ़ करने जा रहा है। और तब साहेब जी ने बड़ा गजब का जवाब दिया कि मुझे संघ स्थविर पद पर आरूढ़ करने जा रहे हैं, पर पहले मैं एक सच्चा साधु तो बन जाऊं, मेरे अंदर मुनि तो आ जाए, मैं सच्चा मुनि तो बन जाऊं। क्या इस मुनि जीवन के प्रति 102 साल की उम्र के अंदर भी उनके पास क्या निष्ठुरता होगी और क्या चारित्र के प्रति उनकी उत्कृष्टता के भाव होंगे, जो आज 950 से अधिक श्रमण श्रमणी भगवंतों के नायक हैं। वर्तमान के अंदर जिन शासन के अंदर विराजमान समग्र श्रमण श्रमणी भगवंतों में जिनका सर्वाधिक संयम पर्याय है, जिनको समग्र जिन शासन के चारों पंथों ने मिलकर करके संघ स्थविर पद से नवाजा है, ऐसे गुरुदेव जब ये वाक्य बोले कि मैं अभी सच्चा मुनि बना या नहीं बना, तो हमको आश्चर्य लगता है। हमको आश्चर्य होता है कि साहेब किस पराकाष्ठा और उनका संयम जीवन के प्रति क्या अहोभाव होगा, क्या संयम के प्रति उनका समर्पण होगा। ऐसे गुरुदेव श्री का 102वां जन्म दिवस आ रहा है, जिस वर्ष को हमको संघ स्थविर
सत्कार महामहोत्सव के रूप में बनाना है। और इसी के ऊपर अब गच्छाधिपति श्री संघ स्थविर आचार्य ऋषि दौलत सागर सूरी महाराजा का गुण का कीर्तन करेंगे। हमारे मेरे वडील गुरु गाता युवा हृदय सम्राट आचार्य भगवान विश्वरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा अपनी ओजस्वी वाणी के अंदर आचार्य भगवंत के तारक गच्छाधिपति श्री के जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आवाज बंद कर। अक्षत महाराज कितनी देर बोलना है भाई? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। कितनी मिनट बोलना भाई? हाँ साहब 15 मिनट, 15-20 मिनट आप लास्ट वक्त आए। ठीक ठीक 20 मिनट, ठीक ठीक ठीक। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राध्याय धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धतणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये श्री गुरु नवरत्न समरिये वांछित फलदातार। पुण्यशालियों, जिनेश्वर परमात्मा ने शासन की स्थापना करने के साथ में 2 प्रकार के धर्म का प्ररूपण किया। सर्वप्रथम सर्ववृत्ति धर्म और दूसरे नंबर में देश वृत्ति धर्म का उन्होंने उपदेश मार्ग बताया। सर्ववृत्ति धर्म को बता करके हम लोगों के ऊपर परमात्मा ने जो असीम उपकार किया है वो जन्मों जन्म के अंतर्गत हम उनका ऋण चुका नहीं सकते। अनमोल जैन धर्म की प्राप्ति, जिन शासन की प्राप्ति के बाद में आज एक अनूठे पुण्य संयोग को हम लोग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त हुए हैं। हमारा पुण्य का उदय जगह है जिसके अंतर्गत आज हमारे सभी के लाडले संघ सवीर गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा एकदम बहुत 101 वर्ष परिपूर्ण करके 100 वर्ष परिपूर्ण करके 101वें वर्ष के अंतर्गत जो प्रवेश करने की जो उनकी प्रक्रिया होने जा रही है, ये मांगलिक प्रक्रिया के हम सब मिलकर साक्षी बनने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कोई उच्च जीव दया का कोई पालन किया होगा, जिस उच्चतम जीव दया के चलते गच्छाधिपति श्री निरोगी है। अभी 4-5 साल पहले इंदौर के अंदर मेरे से उनसे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान श्री नवरत्न सागर सुरेश्वर जी महाराजा के 75वें जन्मोत्सव के अंतर्गत आप श्री ने सानिध्य प्रदान किया था और उस समय जो उनके साथ रहने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उन पलों को जीवन में कभी नहीं भूल सकता। उनके वंदन करने का सुयोग जो प्राप्त हुआ वो नहीं भूल सकता। इस उम्र में भी अनुशासन के मामले में उनका जो अनुशासन रहा है वो मेरे नजरों से निहारा है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर लाग लपेट लाए बिना बेहिचक उपदेशात्मक जो आदेश वो कर सकते हैं, ऐसा विभाग जीवन शैली वाला व्यक्तित्व मुझे दिखाई नहीं दिया। अनेक समय में, अनेक टाइम में ऐसे उनके पवित्र जीवन के रसास्वाद करने का मुझे संयोग प्राप्त हुआ।
मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। मेरे दीक्षा के पूर्व काल में जब मैं छोटा सा था, तब आचार्य भगवंत दौलत सागर सुसरी महाराज आचार्य तो नहीं थे। उस समय अक्सर मुझे मेरे नवकार मंत्र को सुनते थे, मेरे सूत्रों को सुनते थे, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से वो मुझे पढ़ाते थे। एक उनकी वो भी अवस्था देखी। गच्छाधिपति आचार्य भगवंत देवेंद्र सागर सुसर जी महाराज साहब जी के दशा पुरवाड़ आदि के समय में उनके साथ निरंतर उनके साथ रहने का समय प्राप्त हुआ। उस समय भी उनका मार्गदर्शन लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सच तो यह है कि ये एक निर्मोही संत, एक आत्मार्थी संत, जीवन के अंदर आराधना साधना के अंदर रत रहने वाला संत, ये जीवन काल की एक परम उपलब्धि है। अगर हनुमान की छाती को चीरा जाए और राम के दर्शन अगर हो सकते हैं, अगर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत दौलत सागर सुरमाज की छाती को अगर चीर दिया जाए तो उनके अंदर आगम के दर्शन होंगे। ये मेरा चश्मदीद गवाह है, मैं उसका साक्षी। छाती चढ़ने का और कोई मतलब नहीं है भैया। उनके हृदय के अंदर आगम इतना बसा हुआ है। अगर कोई भी कार्य में उनको बिठाना हो और आगम मंदिर की बात छेड़ दी तो घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी बराबर बैठ जाते थे। इंदौर के अंदर मैंने इस चीज का बराबर अवलोकन किया। इतने वो सरल, इतने रुचु, इतने प्राज्ञ हैं। बार बार मुझे एक ही बात करते कि विश्वरत्न आगम मंदिर क्या बनावવાનું છે, વિશ્વરત્ન આગમ મંદિર ક્યાં બનાવવાનું, આપ સાહેબ આદેશ કરો ક્યાં બનાવવું છે। ના કે બધી જગ્યાએ આગમ મંદિર હોવું જ જોઈએ, જેટલા દેરાસર હોય એટલી જગ્યાએ આગમ મંદિર હોવું જોઈએ। इतिहास की एक ये अमर घटना है। जहां पर भी आगम मंदिर बने हैं, इन गुरु भगवंत ने अपनी समस्त ऊर्जाओं का उपयोग करके आगमों को मूर्त रूप देने में कोई कमी नहीं बरती। पुण्यशालियों, आज समूचे चीन शासन के एक गौरव के समान पूज्य आचार्य भगवंत दौलत सागर सुसर जी महाराजा एक संघ स्थविर के पद पर आज सुशोभित है। समूचा जैन संसार उनको नतमस्तक करता है, उनको वंदना करता है, उनके चरणों में झुकता है। और आज वो इस पद पर हैं जिन्होंने शताब्दी को परिपूर्ण किया है, जिन शासन में सर्वाधिक जिनकी दीक्षा पर्याय की उपासना है और आगमों का वारसा जिन्होंने हस्तगत किया है, ऐसे पुण्यशाली गुरु भगवंत का हमें सुयोग प्राप्त हुआ है। वो हमारे गच्छ के गच्छाधिपति हैं। ये हम सभी के लिए अत्यंत आनंद, गौरव और एक अभिमान का प्रतीक है। पुण्यशालियों, आज इस उम्र में भी वो जिस प्रकार से निर्लेप भावना के साथ स्वयं ओगा बांध रहे हैं, माला गिन रहे हैं, वो स्वयं स्वाध्याय कर रहे हैं, पुस्तकों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये सचमुच में ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। 7 अजूबे तो शायद दुनिया ने देखे होंगे, लेकिन एक 8वां अजूबा अगर कोई देखना हो तो गच्छाधिपति संघ स्थविर आचार्य भगवंत को देख लीजिएगा। इस उम्र में भी, इस अवस्था में भी, जिनके रोम रोम के अंदर जैन शासन भरा हुआ है, जिन शासन के प्रति अविहड़ जिनका राग है, गुरु भगवंत आगमोद्धारक आनंद सागर सुसर जी महाराजा के आगमों की जो परंपरा है, उस आगमों की परंपरा को जिन्होंने बहुत प्यार से आगे बढ़ाया है, ऐसे गच्छाधिपति आचार्य भगवंत के चरणों में जितनी वंदना करें उतनी कम है। आज ये प्रवचन के माध्यम से हमें जो गुणानुवाद करने का एक सुयोग्य प्राप्त हुआ है, मैं तो अभी ही एक स्कूल के अंदर एक विराट प्रवचन सभा करके ही आ रहा हूं और उनके जीवन के बारे में काफी कुछ मैंने वहां पर बात बताई। आज पुनः इस प्रवचन के माध्यम से भी ये एक अनूठा सुंदर गुरु भगवंत के गुणानुवाद करने का एक सुयोग प्राप्त हुआ है। पुण्यशालियों, ऐसे सरल मना, ऐसे भद्रिक और ऐसे एकदम जिनका अल्प संसार है, निकट मोक्षगामी आत्मा है, ऐसे पवित्र आत्मा के गुण हमारे जीवन में आवे और हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन में भी उस मोक्ष के रूप में हम लोग आगे बढ़े। बस यही शुभेच्छा है।
उनके आशीर्वाद हम सभी पर बरसते रहें, ऐसी परमात्मा से मंगलमय प्रार्थना है। समय शायद मुझे नहीं मालूम, टाइम मेरे पास है नहीं, घड़ी है नहीं, लेकिन शायद 10-15 मिनट तो हो गए होंगे और अक्षत महाराज प्रकट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे रुकना चाहिए। कोई बात नहीं, अक्षत महाराज आप प्रकट हुए हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ चीजें इशारों में समझने की होती है और मैं जल्दी करता हूँ। चलिए, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो धीरे धीरे मिच्छा में पड़ा। हमने अभी आचार्य भगवान युवानंद सम्राट ने कई अच्छी बात बताई। 102 साल की उम्र के अंदर भी आज भी गच्छाधिपति श्री संघ स्थविर श्री आज भी अपना होगा स्वयं मानते, लगता ही अपने आप में एक 8वां अजूबा है। और आज हमको कल से उनका विराट महामहोत्सव प्रारंभ होने वाला है, जिसके अंदर हमको संघ स्थविर के रूप में, संघ स्थविर सत्कार महामहोत्सव के रूप में चलने वाला वो 160 दिवसीय महामहोत्सव, जिससे 1200 से अधिक श्री संघों के अंदर उत्सव बनाया जाएगा, वो महोत्सव का आगाज कल से होने वाला है। तो हम सबको उस महोत्सव में जुड़ कर करके एक संयम पुरुष, एक संघ स्थविर गच्छ नायक की वंदना करना है, अनुवंदना करना है, उनके गुणों को का गुणानुवाद करना है और हमारी आत्मा को निर्मल बनाना है। आज कुछ टेक्निकल एरर्स आ गए थे, क्योंकि आचार्य भगवान चंद्रानंद सागर सूरी महाराजा और नरदेव सागर सूरी महाराजा के यहाँ से वो किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। उन्होंने वीडियो भेजे थे, उन वीडियो को लाइव करने के कारण लास्ट टाइम पे वीडियो आए और वो वीडियो लाइव करने में कुछ टीम के टेक्निकल एरर्स आ गए थे। इसके लिए हम लोग 15-20 मिनट लेट हो गए। उसके लिए भी वीओजे टीम से मैसेज आया है, वो मैं आपको कन्वे कर देता हूँ कि उसके लिए भी मिठाई टुकड़ा कि वो लोग किसी कारणवश वो वीडियो वर्टिकल आ गया था और उसको सही करने के अंदर पूरा का पूरा सेटअप उड़ गया था। उसके बाद वापिस जहाँ सेटअप बनाया था वो स्टूडियो को छोड़ कर करके दूसरे स्टूडियो से वापस लाइव किया। इसके लिए पूरी की पूरी वीओजे टीम का भी खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद कि आपने इस आयोजन को सफल बनाया। इस तरह से बस शासन के कार्य करते रहे और अपना सहयोग सदैव शासन के अंदर देते रहें। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ कहा हो तो करबद्धम इच्छामि दुक्कड़। फाता में मुक्ति महाराज, मारो आवाज रही है? हाँ साहब, आ रहा है। म्यूट अंकित मुक्ति महाराज साहब का आवाज खोल दो। सिद्धांत लाइव बंद कर देना। हाँ भाई, करवा दिया।